sound. یہ خداوند کی ایک خاص برکت ہے کہ جو خداوند نے آج ہمیں دی ہے. ہم اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو دعوت دی جائے. آپ صاحب اس بات کو اوکے؟ ہاللیلویا. ہم اس ہارون کی رسم کو طے کریں گے. بھائی شاہ صاحب خدا کے کلام کے لیے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سال اس دنیا کا عید ہے کہ جو بھی آپ کے پاس مہمان آتا ہے اس کو پھولوں سے ہاروں سے نوازا جاتا ہے. ہاللیلویا. خدا کا شکر کرتے ہیں. بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں پاسٹر سینئر صدیق صاحب، وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. ان کے گلے میں ہار جو ہے ہمارے درمیان بھائی رکھا صاحب موجود ہیں، وہ ان کے گلے میں ہار ڈالیں گے. ہاللیلویا. پاسٹر شکیل صاحب بھی کیا بنائیں گے، ان کے گلے میں ہار ڈالا جائے گا. بھائی شمون اجابہ موجود ہے سائی بال میں سے، وہ آئیں گے، وہ بھی جلدی کے ساتھ آ جائے. ہاللیلویا. ادھر ہی کھڑے رہیں. ہمارے آج کے وہ ہمارے خصوصی کفیل صاحب، ہمارے وہ پانجے ہیں، پڑیوے بھی ہیں، وہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سامنے آگے. ان کے گلے میں ہار جو ہے میں خود آپ ڈالنا چاہتا ہوں آپ کی زوردار تالیوں میں. ہاللیلویا. ہمارے درمیان چیئرمین صاحب اجابہ موجود ہیں، وہ بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے. اور پاسٹر ندیم باغ صاحب آئیں گے، ان کے گلے میں ہار ڈالیں گے. آپ کی دعا رکھیں گے. ہاللیلویا. ہمارے بھائی ایک بڑی خوشخبری کی بات آپ کو جو بتانے والا ہوں. مسیح چینل کی ٹیم اجابہ موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ بہت پیار محبت کرتی ہے. وہ ہمیں اس کا بہت پیار محبت ہے، وہ اجابہ آئے ہیں. وہ ان کا بہت مسیح لوگوں میں اپنی کلیسیا میں بہت خدمت کا کام ہے. اور جس بھی جگہ پر مسیح قوم کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی جاستی ہوتی ہے، وہ فوری طور پہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ آگے آئیں گے، ان کے گلے میں ہار ڈالا جائے گا. عارف جوید کھوکر صاحب آپ کی زوردار تالیوں میں. ہاللیلویا. پاسٹر ریاض صاحب آئیں گے جلدی کے ساتھ.
پاسٹر ریاض صاحب آئیں گے، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے. ہاللیلویا. آپ کے زوردار تالیوں میں جلدی کے ساتھ آ جائیں گے. ہاللیلویا. وقت کو مد نظر رکھیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اگر جج صاحب جب موجود ہیں وہ فوری طور پہ یہاں پہ آ جائیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ان کے گلے میں ہاتھ سیمل صاحب ڈالیں گے. ہاللیلویا. اسی کا بیٹا جلدی کے ساتھ آ جائیں. ہاللیلویا. آپ کی زوردار تالیوں میں اگر جج صاحب تشریف فرما ہے. ہاللیلویا. جلدی کے ساتھ آ جائیں تاکہ ہم نے وقت کو دیکھنا ہے. ہاللیلویا. 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 تقریباً ختم ہونے والی ہے. ہاللیلویا. آئے ہم سبھی اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے اور سب سے یسوع کے نام سے جھک جائیں گے. سب سے یسوع کے نام سے جھکیں گے. ہم خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے. ہاللیلویا. سب بیٹھ جائیں. سب بیٹھیے. ہاللیلویا. ان کی ساری ٹیم کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی خوبصورت پرستش کی گئی. میری طرف دیکھیے. ادھر دیکھیے. دعا ادھر دیکھیے میری طرف. بڑی خوبصورت پرستش کی گئی. ویری گڈ. رابن نے بڑا اچھا گایا. ویری گڈ. جتنے بھی خادم ہیں بہت اچھے ہیں. خدا ان کو برکت دے. ہمارے درمیان طارق صاحب ہے. خدا انہیں برکت. ان ساری ٹیموں کے لیے زوردار تالی. بیٹھ جائیں. آپ بچوں کو بٹھا دیں. یہ بچے بھی بٹھا دیں. شاباش. کوشش کریں آپ سب اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں. سنیے گا متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. خدا کا فرشتہ یوسف کو ملا اور یوسف سے وہ بولتا ہے. یوسف اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں چپکے سے اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے وہ ڈر رہا تھا. وہ یہ بات میں سوچ رہا تھا. خیال میں لا رہا تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا یہ شاید کوئی انسانی پروگرام ہے اور میں اگر اس میں سے نکل جاؤں گا تو میں سیف ہو جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا. لیکن یوسف کو اس بات کا تجربہ نہیں تھا. یہ کسی انسان کا پروگرام نہیں ہے. کسی انسان نے اس پروگرام کو تشکیل نہیں دیا. کسی قوم نے اس پروگرام کو تشکیل نہیں دیا. اس پروگرام کو تشکیل دینے والا رب الفاظ ہے جو فوجوں کا رب ہے اور لشکروں کا خدا ہے. غور سے سنیے اس بات کو. یوسف یہ سوچ رہا تھا. یوسف یہ سوچ رہا تھا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں. میں ایسا کروں کہ میں اس کو چھوڑ دوں. لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. اس بات کو غور سے سنیے گا. کرسمس اصل میں کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے. کرسمس کسی انسان کا بنایا ہوا فیسٹیول نہیں ہے. کرسمس اصل میں خدا جس کا نام یہوہ ہے جو لشکروں کا خدا ہے
जिंदगी नहीं है, लेकिन आसमानी क्रिसमस जो है ये आसमान की तश्कील है। पर एक गौर से सुनिएगा, कलाम कहता है कि अभी यूसुफ इन बातों को सोच ही रहा था। सोच क्यों रहा था? कि मैं इस प्लान से निकल जाऊं। अरे ये प्लान असल में कौन सा प्लान है? खुदा का फरिश्ता यूसुफ को बोलता है, तेरी बीवी के हां एक बेटा होगा, और वो बेटा आम बेटा नहीं है, वो बेटा खास बेटा है, और वो बेटा ऐसा बेटा है, दुनिया के अंदर बहुत से लोग, बहुत से नबी, बहुत से लोग पैदा हुए, बड़े यूनिक तरीके से पैदा हुए, लेकिन उनमें से किसी के नाम के साथ ये नाम नहीं जोड़ा गया। अरे वो निजात दहिंदा होगा। इसकी पैदाइश के साथ जो नाम जोड़ा जा रहा है वो ये है कि उसके बेटा होगा, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इस बात को गौर से सुनिएगा। क्रिसमस आसमानी तख्लीक है, क्रिसमस खुदा की तख्लीक है, क्रिसमस निजात है। निजात किस काम के लिए? गौर से सुनिए, इंसान को एक कोड लगा हुआ था। इंसान का वो कोड पैसे से, दौलत से, शान शौकत से भी खत्म नहीं हो रहा था। इंसान ने तरक्की की, इंसान चांद तक पहुंच गया, इंसान ने बड़ा कुछ किया, लेकिन गुनाह का कोड इंसान की रूह के साथ जुड़ा हुआ था। गौर से सुनिए, ये प्लान जो है उसके बेटा होगा, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? मिलकर बोलिए, उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्रिसमस असल में, आज मैं आपको चंद बातें बताता हूँ क्रिसमस है क्या। लेट्स कम टू द वर्ड। गौर से सुनिए, क्रिसमस क्या है। पहली बात गौर से सुनिए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि बागे अदन के अंदर इंसान का खुदा के साथ रिश्ता क्या हो गया था? मुझे बोलिए, क्या हो गया था? इंसान का रिश्ता बागे अदन से, इंसान से, खुदा से टूट चुका था। इंसान को खुदा ने बुलाने के लिए बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन इंसान उन मंसूबों के अंदर फेल हो गया। इंसान को खुदा ने शरीयत दी, और कोई भी इंसान नहीं था जो शरीयत के तकाज़ों को पूरा कर सके। हुआ क्या? अदन नाम है खुदा का इंसान से जुदा होना। अदन नाम है इंसान से खुदा का जुदा हो जाना, और इस जुदाई को खुदा ने पूरा करने के लिए बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन इंसान हर मंसूबे में फेल हो गया। लेकिन खुदा ने कहा, इंसान के बस की बात नहीं है कि वो आसमान पर पहुंच सके। इंसान गुनाह की हालत में आसमान पर नहीं जा सकता। खुदा पाक है, खुदा मुकद्दस है, खुदा वहीब है। इंसान में ये पावर नहीं थी कि इंसान अपने आप को पाक कर सके। गौर से सुनिए, अदन का मतलब है जुदाई। किसकी? इंसान की खुदा के साथ। हुआ क्या? खुदा ने कहा इंसान इस काबिल नहीं है कि आसमान की बादशाह में पहुंच सके। खुदा ने काम किया। खुदा ने इंसान के बेटे के लिए जो गुनाहगार था, जिसकी जात में गुनाह है, जिसकी कामों में गुनाह है, जिसकी सोचों में गुनाह है, जिसकी रवशों में गुनाह है, इंसान अपने आप को खुदा के हुजूर काबिल नहीं कर सकता। इंसान
सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन इंसान पाकीज़गी नहीं खरीद सकता, निजात नहीं खरीद सकता, गुनाहों की माफी नहीं खरीद सकता। किसी भी इंसान में कोई क्वालिटी नहीं है कि वो निजात को खरीद सके। खुदा ने किया क्या? गौर से सुनिए, क्रिसमस है क्या? अदन के अंदर जुदाई हुई है, लेकिन गौर से सुनिए, क्रिसमस है क्या? क्रिसमस असल में वो इंसान जो अदन से भड़का हुआ था, अदन से गुनाहों में था, अदन से और खुदा से दूर था, खुदा से जुदाई, रिश्ते टूट चुके थे, खुदा बड़ा वेट कर रहा था। और खुदा ने किया क्या? खुदा ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, अब इंसान ज्यादा देर मुझसे नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान के लिए यह मुश्किल था कि वो खुदा का बेटा बन जाए। इसलिए खुदा ने किया क्या कि खुदा ने अपने बेटे को इंसान का बेटा बनाकर जमीन पर भेज दिया, ताकि इंसान का बेटा अरे खुदा का बेटा बन जाए। सुनिएगा, क्रिसमस क्या है? एक ही पैगाम है, इंसान के बेटे के लिए यह बड़ा मुश्किल था कि वो खुदा का बेटा बन जाए। एक गुनाहगार इंसान कभी भी खुदा का बेटा नहीं बन सकता, लेकिन एक गुनाहगार इंसान जब डूब जाए, इसको साफ कर दिया जाए, इसको पाक कर दिया जाए, और वो गुनाहगार इंसान भी खुदा का बेटा बन जाता है। गौर से सुनिए, क्रिसमस है क्या कि एक गुनाहगार के बेटे को लेकर खुदा के बेटे यीशु नासरी ने आसमान से नीचे उतरा, और एक गुनाहगार के बेटे को उसने पकड़कर, उसने धोकर उसको खुदा का बेटा बना दिया। और कलाम कहता है कि जिन्होंने इसको कबूल किया उनको ये हक बख्शा दिया। इंसान खुदा से दूर था, वो तेरे बीवी के यहाँ बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को क्या करेगा? अपने लोगों को दोबारा से खुदा का बेटा बना देगा। वो रिश्ता जो अदन से टूट चुका था, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आखिरी 2-4 बातें बताऊंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। गौर से सुनिए, एक दफा का जिक्र है कि एक मिशनरी जोड़ा था और वो खिदमत किया करता था, वो खिदमत गुजारी का काम करते थे। उनका एक बेटा था और कॉल हुई उनको कि तुम्हें किसी दूसरे मुल्क के अंदर भेजा जा रहा है। उनको उन्होंने कीनिया के अंदर भेज दिया। ये अमेरिकन जोड़ा था और उनका एक बेटा था, और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को हॉस्टल के अंदर दाखिल करवाएंगे, हम खुदा का काम करने के लिए हम कीनिया में जाएंगे। उन्होंने किया क्या? व्हाट दे डिड, उन्होंने किया क्या कि अपने बेटे को, जिसका नाम चार्ल्स था, उन्होंने कहा, चार्ल्स, क्या तू यूनिवर्सिटी में रहकर, क्या तू हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करेगा? उन्होंने कहा, जी डैडी, मैं यहाँ पर ही रहूंगा। हुआ क्या? गौर से सुनिए, ये मिशनरी जोड़ा कीनिया के अंदर चला गया और कीनिया के अंदर ये जाकर खिदमत कर रहा था। और अचानक ही साल जब हुआ, तो साल में जब क्रिसमस आया और सारे बच्चे अपने घरों को लौट गए, सारे बच्चे अमेरिका के अंदर अपने अपने शहरों को लौट गए, वहां पर एक बच्चा रह गया और उस बच्चे का नाम चार्ल्स था। क्रिसमस का दिन आया, और जब क्रिसमस का दिन आया तो
तो सारे कमरे बंद हो गए, लेकिन इस बच्चे का कमरा खुला हुआ था, क्योंकि इसके पेरेंट्स कहाँ पर थे? मुझे बोलिए कहाँ पर थे? इनके पेरेंट्स कीनिया में थे। यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल आया और उसने कहा, अरे चार्ल्स तेरा क्या हाल है? उसने कहा, सर मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने कहा, चार्ल्स तू कैसा महसूस कर रहा है? उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस दीवार पर, उस हॉस्टल के कमरे की दीवार पर एक तस्वीर जड़ी हुई थी, जिस तरह ये बैनर जड़ा हुआ है, और वहां पर उस तस्वीर के अंदर उसके माँ बाप की तस्वीर थी। उसने कहा, चार्ल्स इस क्रिसमस के मौका पर बता तेरे लिए कौन से खाने बनाए जाए, बता तेरे लिए किस तरह तेरी खिदमत की जाए। चार्ल्स तुझे क्या दिया जाए इस क्रिसमस के मौका पर? बता तुझे अच्छे कपड़े चाहिए? उसने कहा, नहीं सर। उसने कहा, तुझे क्या खाना है मुझे ये बता। उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं खाना। उसने कहा, अरे चार्ल्स तू क्या लेगा? उसने कहा, मैंने सर कुछ भी नहीं लेना। उसने कहा, मेरे ये दिल की ख्वाहिश है। उसने कहा, क्या ख्वाहिश है? उसने कहा, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि ये तस्वीर जो जड़ी हुई है मेरे माँ बाप की, मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि ये सारे बंधन टूट जाए और इस क्रिसमस के मौका पर मैं अपने पेरेंट्स से जाकर मिलूं, मैं अपने डैडी से जाकर मिलूं। याद रखिए, उसने कहा, तूने मुझसे क्यों मिलना है? उसने कहा, मुझे कपड़े मुतमिन नहीं कर सकते, मुझे खाना मुतमिन नहीं कर सकता, मुझे दुनिया की इस वक्त कोई भी चीज मुतमिन नहीं, मुझे मेरा डैडी चाहिए। अगर मुझे डैडी मिल गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे अंदर से काम खत्म हो जाएगा। सेम इसी तरह गौर से सुनिए, आप और मैं और गुनाहों के अंदर थे, आप और मैं बदियों के अंदर थे, आप और मैं अदम से अबलीस के कब्जा में थे, और हम सबको दुनिया की कोई भी चीज मुतमिन नहीं कर रही थी। ना तो कपड़े, ना खाना, ना पीना, ना दौलत, ना शौहरत। हमें दुनिया की सारी चीजें पेश की गई, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं। चार्ल्स कहता है, नहीं नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे कपड़े नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूँ, मुझे मेरा बाप मिल जाए। अरे मेरा सबसे बेहतरीन क्रिसमस हो जाएगा। आप और मैं अदम से ही और खुदा से दूर थे, आप और मैं अदम ही से भटके हुए थे, मैं और आप अबलीस के कब्जा में थे, लेकिन आसमानी खुदा ने किया क्या? हम नहीं जा सकते थे। गौर से सुनिए, जिस तरह चार्ल्स अपने बाप के पास नहीं जा सकता था, मैं और आप अपने खुदावन के पास नहीं जा सकते थे। चार्ल्स का, गौर से सुनिए, चार्ल्स का बाप कीनिया से छुट्टी करके आया और चार्ल्स ने कहा, अरे डैडी मुझे प्रिंसिपल साहब पूछता रहा तूने क्या खाना है? अरे डैडी मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बाप चाहिए। और जैसे ही मैंने तुझे गले लगाया, अरे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे दुनिया की सारी चीजें मिल गई। सेम इसी तरह आप और मैं गुनाहों की जेल से आजाद नहीं हो सकते थे। यूसुफ को भी यही खबर दी गई कि देख उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को क्या करेगा? गौर से सुनिएगा, क्या करेगा? क्या करेगा? आप और मैं, गौर से सुनिए, आप और मैं गुनाहों के अंदर जकड़े हुए थे और दुनिया की कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लग रही थी। खुदा ने इंतजाम किया, खुदा ने ये किया कि अपने बेटे यीशु मसीह को भेजकर आपको और मुझे गले लगा लिया। उसका नाम यीशु होगा और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निकाल देगा। चार्ल्स को किसने खुशी दी? मुझे बोलिए, मुझे बोलिए। इस डैडी
joy. उसके बाप ने उसको खुशी दी। सेम इसी तरह दुनिया की शान और शौकत आपको खुशियां नहीं दे सकती। आसमानी, गौर से सुनिएगा, जिस तरह उसका बाप कीनिया से सारा कुछ वाइंड अप करके अमेरिका में आ गया, सेम इसी तरह आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की सारी शान शौकत छोड़कर और इस कैदी चार्ल्स को, जिसमें मैं भी शामिल था, उसने हमें ले लिया और हमें छुड़ा लिया और हमें रिहा कर दिया और हमें आजाद कर दिया। क्रिसमस है क्या? व्हाट इज अ क्रिसमस? निशा थोड़ा सा आस्था करें, इसके बाद में दुआ करेंगे। क्रिसमस है क्या? जिस तरह चार्ल्स को कोई चीज मुतमिन नहीं कर रही थी, इंसान को सारा कुछ भी दे दो, इंसान मुतमिन नहीं होगा। इंसान असल में स्पिरिट बीइंग है। आपको पता है, इंसान के पास गाड़ियां भी आ जाए, सारा कुछ भी आ जाए, इंसान मुतमिन नहीं होता। लोगों को इस इंसान को पैसा मिल जाए, रिटायरमेंट की मिल जाए, गाड़ी, इंसान असल में मुतमिन नहीं होता। असल में इंसान रूहानी है और रूहानी चीज को रूहानी चीज ही मुतमिन कर सकती है। हमें दुनिया की शान और शौकत मुतमिन नहीं कर सकती थी। जिस तरह चार्ल्स का डैडी आया और चार्ल्स के गम मिट गए, चार्ल्स की तन्हाई जाती रही, इसी तरह आपके और मेरे यीशु मसीह ने, जो जिंदगी का खुदावंद है, आसमान को छोड़कर शबाना को, परवेज को, जुवेद को, आमर को गले लगा लिया और उसने कहा तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुझे मेरे परों की जरूरत है और तू मेरे परों में आ जाएगा और तू सब कुछ ठीक महसूस करेगा। इस तरह उस बच्चे को कोई चीज मुतमिन नहीं कर रही थी, इसी तरह हमें भी कोई। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस ये है कि इंसान के बेटे का खुदा का बेटा बनना मुश्किल था। खुदा के बेटे ने इंसान का बेटा बनकर इंसान के बेटे को खुदा का बेटा बना दिया। ये है क्रिसमस। क्रिसमस फूल नहीं है, क्रिसमस ये है कि खुदा के बेटे ने इंसान का बेटा बनकर इंसान के बेटे को खुदा का बेटा बना दिया। यही निजात है। जिस तरह उस बच्चे को कोई चीज मुतमिन नहीं करती थी, इसी तरह हमें भी कोई चीज। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन बुरे हालातों में भी खुदा ने हमारी मदद। आप सब खुश हैं? खुश हैं? बात बड़ी काटे खुश जो। हालेलुया। और ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਦਮਾ ਕਰੀ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ